Hey guys, I am back with another video. So this is going to be the cohort 2 week 2 video, like what has been covered in the cohort 2 in week 2. So these are the topics that has been covered in the week 2. First of all, what is ECMAScript promises, express server, nodemon, response object, port and environments variable, parsing body, parsing header, parsing queries, postman, filter map, arrow function, bash and terminal, and GitHub. So these are the topics that I am going to cover in this journey. So let's start ECMAScript. What is ECMA basically? ECMA is basically a standardization organization which set the rules and regulation like how scripting language should work. The ECMAScript is a scripting language on which JavaScript is based. ECMA International is in charge of standardizing ECMA. Sorry, this should be ECMAScript. ECMAScript. ECMAScript, it serves as the guideline or the rules of a scripting language design. JavaScript is a scripting language basically. And Weight Engine. Weight Engine is basically engine which is used to run the codes, like different types of codes. It is the open source JavaScript engine that is responsible for compiling the JS code into native machine code before executing. Like a web browser like Chrome, Node.js has been using the V8 engine for a long time to run the codes like JavaScript codes. Next is set timeout and try catch. So set timeout is basically used to delay the execution for some time. Like if you want to execute any function after some time, then set timeout has been used. Like set timeout, this function delay the execution of callback function by specified time in milliseconds. Like we have to pass the time in millisecond to delay the execution of the function. In this example, like delay function, I have written here the delay function in is called after the 2-second delay. Here delay function, like here I have written the 2-second delay. Like first of all, I should complete the try catch block, then I will tell you about this function that I have written here. Try catch, this block is used to handle the exception if any error occur in the try block. The catch block will handle it. Like try और catch blocks हम लोग इसलिए यूज करते हैं, लाइक कोई भी अगर मुझे एरर या एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी हो तो हम लोग ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करते हैं. लाइक वी विल सिमुलेट द एन एरर विद द थ्रो और न्यू एरर. यहाँ पे मैंने एक सिंक्रोनस से कोड लिखा हुआ है, एक सिंक्रोनस फंक्शन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखा हुआ है. मतलब मैं कोई एपीआई कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, उसे मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा है. अगर वो एपीआई कॉल से मुझे कोई एरर आता है या चलता नहीं है तो वो कैच ब्लॉक में सीधा यहाँ पे आ जाएगा और मैं उसे एरर को प्रिंट कर सकता हूँ. लाइक यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है console.log एरर इज फेचिंग यूजिंग यूजर डेटा एरर डॉट मैसेज. मतलब जो भी एरर होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं उसी फंक्शन कॉल कर रहा हूँ. अब यहाँ पे सेट टाइम आउट का मैंने यहाँ बनाया था, जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है डिले फंक्शन करके, उसमें मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ दिस इज डिले फंक्शन. अब मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, मतलब वो ये जो फंक्शन है वो 2 सेकंड बाद चलेगा. देखो यहाँ पे 2000 मिली सेकंड मैंने लिखा है ना, वो 2 सेकंड के इक्वल होता है. अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे console.log वेटिंग फॉर द डिलेड फंक्शन. तो पहले तुम्हें अगर ये फंक्शन चलाऊँ यहाँ से, मैं सिंपली यहाँ से इतना कॉपी करके, तो तुम्हारा ये चलेगा पहले, मतलब ये फंक्शन होगा, फिर कॉल नहीं होगी फंक्शन की. लेकिन पहले प्रिंट क्या होगा, ये प्रिंट होगा वेटिंग फॉर द डिलेड फंक्शन, उसके बाद हो ये प्रिंट होगा दिस इज द डिले फंक्शन. चलो दिखाता हूँ तुम्हें, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी. देखो यहाँ पे क्या लिखा था, वेटिंग फॉर द डिलेड फंक्शन, और यहाँ पे दिस इज द डिले फंक्शन. ये जो तुम्हारा है बाद में लिख के आ रहा है ये, क्योंकि ये तुम्हारा वेट कर रहा है, 2 सेकंड का डिले ले रहा है. तुम्हें एक बार पूरा कोड प्रिंट करवा दे रहा हूँ. लाइक देखो जो एसिंक फंक्शन एक मैं कॉल कर रहा था, एसिंक्रोनस कॉल जैसे कि फेच कर रहा था एक एपीआई से. ये रहा तुम्हारा यहाँ से एपीआई में कॉल किया यहाँ पे फेच फंक्शन से. ये रहा यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ. देखो console.log डेटा को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये डेटा मेरा जो है ये प्रिंट हो रहा है, यूजर डेटा जो है पूरा यहाँ से. अब जो नेक्स्ट फंक्शन मैंने कॉल किया था डिले वाला, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज डिले फंक्शन, और यहाँ पहले ये लिख के आएगा वेटिंग फॉर द डिले फंक्शन, उसके बाद ये हमारा आएगा दिस इज डिलेड फंक्शन. सॉरी, यहाँ पे देखो वेटिंग फॉर द डिलेड फंक्शन,
उसके बाद ये जो तुम्हारा था एसिंक्रोनस कॉल था फेच एपीआई वाला, तो ये रन हुआ है तुम्हारा, क्योंकि एसिंक्रोनस कॉल है। उसके बाद ये प्रिंट हुआ है, उसके बाद तुम्हारा ये रन हुआ है। यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन जो कहाँ गया तुम्हारा, डिलीट फंक्शन वाला, दिस इज द डिलीट फंक्शन लास्ट में लिखा गया है। तो एसिंक्रोनस कॉल है बेसिकली ये सब। ये कोड तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर तुम चाहो तो इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, खुद से भी देख सकते हो कैसे रन कर रहा है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोमिसेस। यार देखो प्रोमिसेस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब प्रोमिसेस है क्या बेसिकली। जो प्रोमिसेस होता है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इसे पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये प्रोमिसेस, ए जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। लाइक देखो हम लोग प्रोमिसेस का यूज करते हैं किसी भी एसिंक्रोनस कॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक रिटर्न में ऑब्जेक्ट हम लोग को देता है इवेंचुअल कंप्लीशन। लाइक हम लोग कैसे इसे हम लोग डॉट देन के मेथड से इवेंचुअली अप्लाई करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मतलब कैसे। देखो यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, लेट प्रॉमिस लिखते हैं, उसके बाद न्यू प्रॉमिस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अंदर फंक्शन होता है जो कि 2 पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। मान लो कि मैंने कोई कॉल किया और मुझे इनपुट मिल गया, वहाँ से रिजल्ट मिल गया, तो वो रिजॉल्व में हो जाएगा। अगर मुझे वहाँ से आउटपुट नहीं मिला बाय द वे, तो वो रिजेक्ट में आ जाएगा। जैसे कोई एरर शो हो गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कहा लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू इफ सक्सेस, मगर अगर सक्सेस आ जा रही है तो वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा, अगर सक्सेस नहीं आ रही तो रिजेक्ट में चला जाएगा। सिंपल एज इट। अब यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोमिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एसिंक्रोनस ऑपरेशन। प्रोमिसेस आर यूज्ड टू हैंडल द एसिंक्रोनस ऑपरेशन सच एज द फेचिंग डेटा फ्रॉम ए सर्वर, रीडिंग ए फाइल और एग्जीक्यूटिंग ए टाइमर। स्टेट, अब यहाँ पे प्रोमिसेस की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं। पहला है पेंडिंग, दूसरा है फुलफिल, तीसरा है रिजेक्टेड। पेंडिंग मतलब अगर मैं कोई कॉल कर रहा हूँ तो वो पेंडिंग में चली गई, मतलब अभी वो एग्जीक्यूट पूरी हुई ही नहीं है, मतलब उसे टाइम लग रहा है, तो वो पेंडिंग में है। द इनिशियल स्टेट बिफोर द प्रॉमिस इज रिजॉल्व और रिजेक्टेड। उसके बाद फुलफिल, मान लो कि मैंने कोई कॉल की एपीआई कॉल और मुझे वहाँ से रिजॉल्व हो गया, मतलब आउटपुट आ गया है, तो वो तुम्हारा रिजॉल्व केस में आ जाएगा। द ऑपरेशन वॉज कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड द प्रोमिसेस हैज द रिजल्टिंग वैल्यू। थर्ड इज रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट, तो यहाँ पे देर वॉज एन एरर ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड द प्रॉमिस हैज एन एज ए रीजन फॉर द फेलियर। लाइक मतलब कि मैंने कोई कॉल की एपीआई कॉल की और वहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं, एरर आया है, तो वो तुम्हारा रिजेक्ट केस में आ जाएगी। और प्रोमिसेस का मैं चेनिंग कर सकता हूँ बेसिकली देन मेथड का यूज करके। यहाँ पे प्रोमिसेस सपोर्ट द चेनिंग थ्रू द देन मेथड, मतलब एक प्रॉमिस मैं इंप्लीमेंट करूँगा, उसके बाद डॉट देन लगा के मैं दूसरा प्रॉमिस भी इंप्लीमेंट करता हूँ, लाइक फंक्शन को चेन मेथड में एक तरीके से कह सकते हैं। अलाउइंग यू टू सीक्वेंस एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन रीडेबल मैनर। इसमें कि हम लोग को एक और अच्छी चीज़ मिलती है कि एरर हैंडलिंग जो होती है कैच मेथड, जैसे कि जो देन मेथड यूज हम लोग कर सकते हैं नेस्टिंग के लिए। और मतलब जैसे कि एक रिजॉल्व हो गया मेरा प्रॉमिस, तो देन मेथड लगाऊंगा, अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो कैच मेथड लगा के मैं सीधा उसका एरर पकड़ सकता हूँ। प्रोमिसेस है बिल्ट इन एरर हैंडलिंग थ्रू द कैच मेथड, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड प्रोपेगेट एरर इन एसिंक्रोनस कोड। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने कोई एक एसिंक्रोनस कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि ये जैसे ही रिजॉल्व होगा मेरा एसिंक्रोनस कोड पहला, ये फंक्शन एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें डॉट देन लगा सकता हूँ, जो उसका रिजल्ट आएगा एसिंक्रोनस का वो इसमें पास कर रहा हूँ। उसके बाद मैं दूसरे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा मेरा फंक्शन एसिंक्रोनस ऑपरेशन 2, उसके बाद ये तीसरा कॉल होगा। तो मतलब ये डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे। उसके बाद कि अगर मुझे कोई एरर मिलता है तो वो सीधा कैच मेथड में आ जाएगा और मैं प्रिंट करा दूंगा कंट्रोल डॉट लॉग एरर यहाँ पे। Why do we need promises? Avoiding the callback hell, like promises help to mitigate the problem of callback hell, where nesting callback lead to the unreadable and hard to maintain. Like callback क्या होता है, एक तरीके से जब मैं फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन कॉल करता हूँ, जैसे नेस्टेड फंक्शन हो गया, तो एक तरीके से बहुत वो अनरीडेबल मैनर लिखा जाता है, उसे समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ एसिंक्रोनस कोड, प्रोमिसेस प्रोवाइड ए क्लीनर वे टू एग्जीक्यूट एसिंक्रोनस ऑपरेशन सीक्वेंशियली इंप्रूविंग द कोड रिलेबिलिटी। मतलब एक सीक्वेंशियल कोड को लिखने के लिए जैसे कि इसकी रीडेबिलिटी सही हो, तो उसके लिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ 2 तरीके से कोड लिखा गया है, पहला कोई यहाँ पे प्रॉमिस यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पे प्रॉमिस यूज करके लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एसिंक्रोनस ऑपरेशन 1, और रिजल्ट में यहाँ पे फंक्शन पास कर रहा हूँ, एरो फंक्शन है, उसके अंदर ये नेस्टेड फंक्शन है, एक और फंक्शन पास किया हुआ है, फिर रिजल्ट 2 के अंदर मैंने एक और फंक्शन पास किया हुआ है नेस्टेड। और यही देखो कि मैं यहाँ पे अगर प्रॉमिस यूज करके लिखता हूँ तो कैसे लिख रहा हूँ इसे, एक मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ,
जैसे ये रिजॉल्व हो जा रहा है तो मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं एक फंक्शन के अंदर डॉट मेथड करके दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फिर तीसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे तीसरे फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे फंक्शन में इनपुट एज इनपुट पास हो रहा है, और जैसे ही मुझे ऑपरेशन फंक्शन 2 का मुझे रिजल्ट आ जा रहा है वो फंक्शन 1 में एज ए रिजल्ट पास हो रहा है, और मुझे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है लास्ट में तो मैं डॉट कैच के मेथड यूज़ करके यहाँ पे एरर में प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद एक मेथड आता है promise डॉट ऑल करके फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल promises offer the promise dot all method allowing parallel execution of multiple asynchronous operation and waiting for all of them to complete। क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 promises लिखी है, let promise 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एक फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे let promise 2 इक्वल टू एक और फंक्शन लिख दिया। अब मान लो कि मुझे सभी promises को पैरेलली रन कराना है, क्योंकि देखो जो तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड है, एक बार में वो लाइन बाय लाइन जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट करता है, एक बार में एक ही लाइन को एग्जीक्यूट करता है, पैरेलली एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो मान लो कि मुझे पैरेलली एग्जीक्यूट कराना है तो वो कैसे होगा तुम्हारा, तो एक मेथड है promise डॉट ऑल करके, यहाँ पे मैं दोनों प्रॉमिस पास कर दूंगा और डॉट देन मेथड। देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे रिजल्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट 1 रिजल्ट 1, यहाँ पे इसमें क्या आएगा तुम्हारा, जैसे ही तुम्हारा ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा इसमें तुम्हारा आउटपुट आएगा रिजल्ट के फॉर्म में। मैंने यहाँ रिजल्ट लिया हुआ है। अब रिजल्ट में 2 प्रॉमिस का आउटपुट आया है, तो मुझे मान लो कि पहले प्रॉमिस का रिजल्ट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, रिजल्ट 0 करके इंडेक्सिंग, रिजल्ट 0 इंडेक्सिंग करूंगा तो मुझे पहला आउटपुट मिल जाएगा, और रिजल्ट 1 करूंगा तो मुझे रिजल्ट 1 का जो है रिजल्ट का जो दूसरा प्रॉमिस है उसका आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक से ज़्यादा प्रोमिसेस को एक साथ पैरेलली रन करा सकता हूँ। और यहाँ पे देखो डॉट कैच मेथड, अगर प्रोमिसेस रन नहीं करते कुछ एरर आता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे डॉट कैच मेथड का यूज़ करके यहाँ पे मैं एरर प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये सब था तुम्हारा प्रॉमिस सा, मतलब प्रॉमिस काफ़ी इजी टॉपिक है यार एक तरीके से, बट इसको लोग बहुत पता नहीं हार्ड वे में मतलब हार्ड मानते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसका जब तुम प्रैक्टिकल करोगे कुछ टाइम के लिए, देन यू विल गेट टू नो लाइक हाउ इज इट इज़। So next is Express server. What is HTTP? First of all, we should know that what is HTTP. A protocol that is defined for machine to communicate, especially for websites. It is the most common way for your website to front end to talk the front end with the back end part. Like if you want to call the back end and communicate with the front end, then we have to use the Express as a middleware. So what is Express.js? Express.js is an open source web application framework for Node.js designed to simplify the development of APIs. There, Express provides a lot of functionalities that is used in the web development to design the web applications. Like first of all, like HTTP method. Like there are a lot of methods. Like if you want to get the data from the database or post or create, update, delete, then we use the HTTP methods. Like first of all, get method. Like get method is used to get the data from the database. Post method used for the creating or updating the resource in the database. Other methods are like put, delete, used to delete the resources from the database. Used for the various purpose such as the updating or deleting resources. Next is routes. अब routes होता क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज। लाइक देखो हरकियत जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये यहाँ क्या लिख के आ रहा है, harkiyat.com.in/new courses, ये लिख के आ रहा है ना। एक तरीके से तुम्हारा राउट कहलाता है, मतलब इस प्लेस पे जाके मुझे क्या मिलना चाहिए। देखो मैंने जैसे क्लिक करता हूँ तो ये सब मुझे दिख रहा है, तो ये तुम्हारा राउट के तरीके से काम आ रहा है। मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो होम पे क्या आ रहा है, डॉट, अगर मैं स्लैश लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे ये दिख के आ रहा था harkiyat.com.in पे मुझे ये दिखेगा। और अगर यहाँ पे /new courses लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे न्यू कोर्सेस, मुझे सभी इसकी जो न्यू कोर्सेज होंगे वो दिखेंगे। मतलब ये डिफरेंट राउट्स, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट पे क्या क्या शो करेगा मुझे। डेफिनेशन, राउट्स डिफाइन द पाथ इन योर एप्लीकेशन एंड द HTTP मेथड्स दे रिस्पॉन्ड टू। अब लाइक मान लो कि उस पाथ पे गया मैं और मुझे वहाँ से रेस्पॉन्स या मुझे कुछ दिखाना है या कुछ लेना है यूज़र से डेटा, तो वो किसके थ्रू ले सकता हूँ। लाइक एक रिक्वेस्ट होता है, दूसरा रेस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट represent the incoming HTTP request from the client, contains information about the request such as the parameter, header and the body. Like जब कोई क्लाइंट मुझे कुछ डेटा भेजता है अपने तरफ से बैकएंड से, और मुझे फ्रंट एंड से, और मुझे बैकएंड में इसे एक्सेस करना होता है, तो मैं रिक्वेस्ट मेथड से इसे एक्सेस करता हूँ।
अब फिर मुझे क्लाइंट को कोई रिस्पॉन्स देना होता है कि मतलब मुझे डेटा मिल गया सक्सेसफुली, तो मुझे उससे रिस्पॉन्स देना होता है। तो मैं वो रिस्पॉन्स के मेथड का यूज़ करता हूँ बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्स। इसको बेसिकली आर ई एस कीवर्ड से डिनोट करते हैं और रिक्वेस्ट को आर ई क्यू से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट द आउटगोइंग HTTP response to be sent back to the client, allow you to send the data set headers or more. And last is port. What is port? Which is, देखो यार, जब हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेट कराते हैं तो मुझे एक पोर्ट चाहिए होता है जहाँ से वो बेसिकली कम्युनिकेट करें। तो ये पोर्ट जो एक्सप्रेस होता है वो इनिशलाइज करता है यहाँ पे। द सर्वर लिसन ऑन द स्पेसिफिक पोर्ट एग्जाम्पल 3000 फॉर इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। जब कोई रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं कोई रिक्वेस्ट करूँगा फ्रंट एंड से, तो वो तुम्हारा जाएगा 3000 पोर्ट पे। अब यहाँ पे यहाँ पे एक कोड लिखा गया, मैं तो समझाता हूँ कोड में है क्या। इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, रेप्लिट पे जाके एक Node.js एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ। जिसको भी इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है यार, बेसिकली तुम विजुअल कोड में भी कर सकते हो, बट उसमें तुम्हें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, इसलिए मैं इस पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी कर लूँगा, उस चीज़ को दिखा सकता हूँ, इसलिए क्रिएट किया। बेसिकली जो कोड लिखा है मैं तुम्हें समझाऊंगा कोड लिखा क्या है इस कोड में। क्योंकि यहाँ पे एक मैंने सर्वर डॉट जेएस फाइल इनिशियलाइज की है बेसिकली, और यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से होता है बाय डिफॉल्ट। उसमें मैंने पहले एक एक्सप्रेस मॉड्यूल जो होता है, एक्सप्रेस एज ए मॉड्यूल जो फ्रेमवर्क होता है, उसे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, इंपोर्टिंग द एक्सप्रेस मॉड्यूल कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस लिख के, तो यहाँ से वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएगा मेरा। उसके बाद एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि एक ऐप हो गया, वो एक्सप्रेस से मैं बना रहा हूँ एक इंस्टेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं डिफाइन राउट कर रहा हूँ। राउट मैंने पहले तुम्हें बताया, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हरकीरत, तो यहाँ पे जो न्यू हरकीरत क्लास .com.in, तो ये तो तुम्हारा एक डोमेन हो गया एक तरीके से कह सकते हैं कि तुम्हारा वेबसाइट का URL। उसके अलावा स्लैश न्यू कोर्सेज जो लिख के आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है वो तुम्हारा पाथ है ये, और वही तुम्हारा यहाँ पे जैसे स्लैश जो हो गया तुम्हारा होम को डिनोट करता है। तो मैं अगर स्लैश से बच जाता हूँ तो मुझे क्या दिखना चाहिए, हेलो दिस इज द राउट फॉर द मेन राउट। उसके बाद मैं सॉरी एक दूसरा राउट डिफाइन कर रहा हूँ, ऐप डॉट गेट मेथड। मतलब देखो ऐप डॉट, जब मैं पोस्ट मेथड यूज करता हूँ, एक और चीज था मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मेथड से गेट और पोस्ट दो मेथड थे। अगर मैं गेट मेथड यूज कर रहा हूँ तो मैं डेटा ले रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ। तो वही चीज ऐप डॉट गेट, इस लिंक पे जाने पे यहाँ पे जो स्लैश लिखा है होम पेज जाने पे ये शो होगा, हेलो दिस इज द मेन राउट। अगर ऐप डॉट गेट में स्लैश API लिख रहा हूँ तो ये मुझे शो होगा एक रेस्पॉन्स का डेटा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन, उसके मैसेज में दिस इज द API राउट। फिर ऐप डॉट गेट लिखता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट पे शो कर रहा हूँ कि मान लो कि मुझे कोई अगर क्लाइंट कोई डेटा दे रहा है और मुझे उस पर रिस्पॉन्स शो करना है कि इस लिंक पे जाके ये चीज़ शो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। फिर लास्ट में एक पोर्ट डिफाइन किया हुआ है, पोस्ट पोर्ट इक्वल टू 3000, जहाँ पे वो जो तुम्हारा सर्वर है वो लिसन करेगा। ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे पोर्ट नंबर डिफाइन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, या कुछ मैसेज नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। इसको हटा दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये जो पोर्शन है ऐसे डिलीट कर दूंगा तो भी चलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कुछ, तो इससे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कोड को और इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे यार पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर तुम उसे विजुअल कोड में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ जाएंगी, जैसे NPM हो गया, एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि वो टाइम टेक्निक से मैं उसमें नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है एक्सप्रेस को, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐप इंस्टेंशिएट किया है। उसके बाद स्लैश पे क्या आ रहा है, जैसे कि होम होता है, जो स्लैश होता है वो होम को डिनोट करता है। जैसे मैं कोई मेरी वेबसाइट पे पहली बार जाता है तो मुझे क्या दिखाना है, तो हेलो दिस इज द मेन रूट। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे स्लैश है ना, रेप्लिक डॉट डेव तुम्हारा मेन URL है, उसके बाद जो स्लैश है तुम्हारा पाथ डिफाइन कर रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैश अगर API लिख दिया, देखो यहाँ पे अगर मैं API लिख देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, देखो यहाँ पे मैसेज आया ना, रेस्पॉन्स डॉट जेसन। मैसेज में क्या मैंने लिखा है, दिस इज द API राउट, यही लिख के आ रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा जेसन का डेटा आ गया।
इसी तरीके से मान लो कि मुझे दूसरे राउट पे दिखाना है, जैसे कि ग्रीड कॉलन नेम पे, तो यहाँ पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो मैं जब इस पाथ पे जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ होगी, कॉन्स नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पाम परम्स और हेलो नेम्स। ये देखो हेलो और नेम यहाँ प्रिंट हो रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे पैरामीटर कुछ पास नहीं किया है। जब तुम वेबसाइट का बैकएंड बेसिकली बनाओगे और फ्रंट एंड को कनेक्ट करोगे तब तुम समझ जाओगे सब चीज़ें हैं क्या। और नाउ बहुत सिंपल सिंपल चीज़, मतलब राउट्स क्या होते हैं उसको मैं बता रहा था। राउट्स क्या होते हैं और उस पर क्या मुझे शो करना है, मैं ये मेथड से शो कर सकता हूँ, ऐप डॉट गेट मेथड से। यहाँ पे पोर्ट इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पे वही शो कर रहा है। देखो यहाँ पे नीचे इसमें लिख के आया हुआ कहीं, देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एट द लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर। ये तुम्हारा वेबसाइट है। तो अब नेक्स्ट है सर्विंग राउट, मतलब डिफरेंट तरीके से राउट्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वही तो मैं दिखा देता हूँ। कॉपी करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी करता हूँ, फिर रन करता हूँ एक बार। देखो होम पेज पे क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले मैंने एक्सप्रेस यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, ऐप इंस्टेंशिएट क्रिएट किया है, पोर्ट नंबर डिफाइन किया है, फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने लिसन पोर्ट कर, मतलब पोर्ट कहाँ इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद होम पेज पे जो तुम्हारा शो होगा हेलो फ्रॉम द गेट राउट, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं स्लैश ऐड लिखूंगा तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है मेरे पास, इसलिए यहाँ पे कुछ लिख के आएगा नहीं। देखो मतलब ये चल रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे कुछ लिख के आएगा एरर या कुछ भी। देखो यहाँ पे कैन नॉट गेट द डेटा, कोई डेटा नहीं है हमारे पास, इसलिए वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही तुम्हारा है पोस्ट राउट है, पुट राउट है, डिलीट राउट है, ये तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे डेटाबेस में कोई तुम्हें डेटा चेंज करना है, डिलीट करना है, एक्सेस करना है, तो इस राउट से तुम लोग यूज़ कर सकते हो। सॉरी, इस मेथड्स का, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का मेथड का यूज़ कर सकते हो तुम लोग। ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेस सर्वर। So the next topic is Nodemon. Like Nodemon, what is Nodemon? Nodemon is a utility that monitor for the changes in your source code and automatically restart the server when changes are detected. Like मान लो कि मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ और ऑन डिमांड मुझे अभी चेंज करना पड़े। मान लो कि मैं काफ़ी चेंजेस कर रहा हूँ और मुझे देखना है उसे, और मैं नहीं चाहता हूँ बार बार मैं अपने सर्वर को या जो भी तुम्हारा बैकएंड उसे इनिशियलाइज करूँ या फ्रंट एंड को इनिशियलाइज करूँ, तो मैं नोडमोन का यूज़ करता हूँ। जैसे कि ये देखता है कोड में चेंज हो रहा है, कोई भी कोड में चेंज, तो ये वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश करता है ऑटोमेटिकली एक तरीके से। तो ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ता है। बेसिकली मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन का नहीं दिखा रहा हूँ, लास्ट में एक मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा जब ये वीक खत्म होगा एक तरीके से, या 2-3 वीक, तो ये इन सब का मैं यूज़ करूँगा तभी मैं दिखाऊंगा। बट तुम इसे यूज़ कर सकते हो npm i g mod नोडमोन करते हैं, जैसे कि -g उसके यूज़ करते हैं ग्लोबली के लिए, ग्लोबली नोडमोन यूज़ होता है, इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल लोकली यहाँ पे लिख सकते हो, ये तुम इंस्टॉल कर सकते हो npm i नोडमोन, ये हटा देते कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद तुम सर्वर सीधा इंस्टॉल करो, नोडमोन सर्वर डॉट जी एस लिखो, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद कोई भी अगर तुम चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा तुम्हारे वेबसाइट में। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। In Express.js application, you send a response back to the client using the response object. The response object provides the various method to send the different types of response such as the text, JSON, HTML and more. like मतलब देखो यार, अगर मैं किसी क्लाइंट को रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, जैसे उसने मुझसे कुछ इनपुट लिया या मुझे कुछ दिया, तो मुझे उसे वापस आउटपुट में कुछ देना होता है, जैसे कि हाँ चलो सक्सेसफुल आपका मुझे इनपुट मिल चुका है, वो चीज़ शो करनी है, कुछ भी हो गया, हम वो एक्सप्रेस मेथड के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअली एक्सप्रेस हमें कई मेथड प्रोवाइड करता है उसमें। लाइक देखो यहाँ पे सेंडिंग ए प्लेन टेक्स्ट, जावा यहाँ पे हम ऐप डॉट गेट मेथड लिखा, राउट डिफाइन किया, रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स लिखा और हमें प्लेन टेक्स्ट लिख दिया डायरेक्ट, तो ये तुम्हें मिल जाएगा सामने जो भी क्लाइंट होगा उसको। उस पर अगर मुझे जेसॉन डेटा लिखना है, जेसॉन डेटा अगर भेजना है क्लाइंट को, तो कैसे करेंगे? ये तुम्हारा यूआरएल हो गया, राउट एक तरीके से, ये तुम्हारा राउट्स हो गया। उसमें हम लोग को अगर जेसन डेटा भेजना है तो कौन सा डेटा के वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, उसके बाद यहाँ पे लिखा अंदर, यहाँ पे की है मैसेज, उसकी वैल्यू है यहाँ पे, और ये तो तुम्हारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे इसे जेसन में कन्वर्ट करना है, तो जेसन यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन लिखना पड़ेगा और इसमें डेटा पास करूँगा तो ये जेसन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा एक तरीके। सेंडिंग एचटीएमएल तुम्हें भेजना है तो तुम्हें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे एचटीएमएल टैग या जो भी चीज़ है एचटीएमएल तुम्हारा कोड है वहाँ लिखना पड़ेगा, और उसे रेस्पॉन्स डॉट सेंड एचटीएमएल कंटेंट डायरेक्ट किसे वेरिएबल को यहाँ भेज दो, वो तुम्हारा एज एचटीएमएल कोड चला जाएगा। रीडायरेक्टिंग मतलब मुझे किसी को रीडायरेक्ट करना है किसी दूसरे यूआरएल पे, तो ऐप डॉट गेट स्लैश पाथ का नाम, उसके बाद किस पे मुझे
रीडायरेक्ट करना है किस पाथ पे है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, यहाँ पे नया यूआरएल मुझे पास करना पड़ेगा स्लैश न्यू लोकेशन, तो वो क्लाइंट तुम्हारा उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेंडिंग स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड क्या होता है कि डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई फेच कॉल डाला और मुझे मिल गया आउटपुट, तो दूसरा स्टेट जैसे 200 हो गया, मतलब उसका होता है ओके। और जैसे कि 400 होता है, 401 होता है, तो डिफरेंट पर्पज से डिफरेंट स्टेटस कोड होता है यहाँ पे। मान लो कि मुझे स्टेटस कोड अगर भेजना है तो क्या लिखूंगा मैं, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसके अंदर कोड लिख दूंगा 40404, उसके बाद डॉट सेंड, यहाँ पे ये मैसेज भी चला जाएगा उसके साथ में, ये कोड भी जाएगा और ये मैसेज भी जाएगा। सेटिंग हेडर्स, मान लो कि मुझे हेडर सेट करना है तो कैसे करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट सेट से ऐप डॉट गेट, यहाँ पे यूआरएल बनाया मैंने, फिर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मैंने बनाया, एक एरो फंक्शन है, उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट सेट, ये तुम्हारा हेडर में आ जाएगा, एक्स डॉट कस्टम हेडर, एक्स डॉट कस्टम वैल्यू, यहाँ पे मतलब हेडर और यहाँ पे वैल्यू एक तरीके से, रेस्पॉन्स डॉट सेंड तुम्हारा ये चला जाएगा। ये बहुत ईजी है यार, मतलब कई तरीके हैं तुम्हें डेटा भेजने के, डेटा भेज सकते हो तुम क्लाइंट को इन तरीकों से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्ट एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो पोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ की हम लोग सर्वर को इनिशियलाइज करते हैं, बेसिकली सर्वर को इनिशियलाइज करते हैं ताकि हम लोग बैक एंड या फ्रंट एंड कॉल को एंटरटेन कर सकें। इंस्टॉल मतलब अगर मुझे किसी, देखो पोर्ट और एनवायरनमेंट जो वेरिएबल होते हैं मैं इसे एक्चुअली डायनेमिकली एलोकेट करता हूँ, डायनेमिकली बनाता हूँ, ना कि कहीं स्टैटिकल बनाता हूँ। स्टैटिकल डेफिनेशन मैं उसे नहीं देता हूँ कहीं भी। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जब तुम देखोगे तो उसे स्टैटिकल कभी भी दिखाया नहीं जाएगा, उसे डायनेमिकली दिखाया जाता है कि एक फोल्डर बनाया जाता है, वहाँ पे सभी वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद उसे जहाँ चाहिए होता है उसे इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक env फोल्डर होता है किसी भी जब हम लोग प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे देखो, जब हम अगर हम लोग को मान लो कि हमने एक फाइल बनाई .env, अगर उसको हम लोग को एक्सेस करना है तो पहले मुझे ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पैकेज में, सॉरी अपने प्रोजेक्ट में। जैसे कि ये प्रोजेक्ट हो गया, तो ये लोकल फाइल है, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, मैं बता रहा हूँ बस तुम्हें। .env फाइल हो गई, अब उसको मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे टर्मिनल में जाकर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा npm i.env। यहाँ से .env जो मॉड्यूल होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ जहाँ मुझे चाहिए, जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी फाइल में आगे। और उसके बाद होता है क्रिएट .env, जो को मैंने बनाया अभी, उसमें पोर्ट इनिशियलाइज कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे Ctrl+C, .env में मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ, बस वो तुम्हारा यहाँ पे, अब मैंने पोर्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। अब मैं इसे index.js में यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख सकता हूँ, मतलब यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली, ताकि मुझे पोर्ट नंबर, जो भी कोई एक्सटर्नल एंटिटी होगी उससे मेरा पोर्ट नंबर नहीं मिलेगा, बस पोर्ट लिखा हुआ दिखेगा। यूज पोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल, यहाँ पे देखो एक एप्लीकेशन इनिशियलाइज हुआ है, इसे मैं सीधा पूरा कर ही देता हूँ, अल्लाह अच्छे समझ में आएगा। अब मुझे इसे इनिशियलाइज करना है तो मैं इसे रन करूँगा। नोड index.js, ये फाइल का नाम है index.js, तो इसे रन करूँगा। सॉरी मैंने पोर्ट यहाँ अच्छा मार तो दिया, बट अब चले। देखो यहाँ पे सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3000। तो सिंपल मैंने एक सर्वर एप्लीकेशन बनाया है, यहाँ पे सर्वर नोड एप्लीकेशन बनाया है, यहाँ पे सर्वर सॉरी एक्सप्रेस इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद ऐप इंस्टेंशिएट किया हुआ है यहाँ पे पोर्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ .env से पोर्ट 3000। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर दूँगा तब भी ये काम करेगा। मतलब ये रहता है कि अगर मुझे वैल्यू यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं इसे फिर भी रन करता हूँ, किसी भी तुम्हें अगर प्रोग्राम को एंड करना है तो Ctrl+C करो तो वो एंड हो जाएगा। फिर मैं इसे करता हूँ नोड index.js, मेरा तब भी रन करेगा क्योंकि मैंने पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है सर्वर इज रनिंग एट दिस पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, बता रहा है, बट ये काम कर रहा है पूरा एप्लीकेशन, थोड़ा सा एप्लीकेशन है। So that's all in port and environment variable. So our next topic is passing body. How to parse the body in the post request. मान लो कि
जो क्लाइंट होता है उसको हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्रोवाइड करते हैं, या मतलब एक तरीके से डिफरेंट डेटा प्रोसेस करना पड़ता है दिखाने के लिए। तो हम लोग कैसे, जैसे कि जेसन डेटा हो गया, फॉर्म डेटा हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट डेटा हो गया। तो वो जो होता है, देखो जो एक्सप्रेस होता है वो जनरली एक स्ट्रिंग को प्रोसेस करता है या ऑब्जेक्ट को, एक तरीके से वो जेसन डेटा को नहीं समझता। उसके लिए हम लोग को मिडल वेयर यूज़ करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडल वेयर। उसमें मैं बताऊंगा कैसे। To parse the body of the post request in Express, you can use the middleware to handle the different types of data format such as JSON or form data. Express provide built-in middleware for parsing JSON, जैसे कि express.json एंड फॉर्म डेटा के लिए ये लिखते हैं हम लोग। अब इसे मैं थोड़ा सा कॉपी करके अपने इंडेक्स फाइल में ले आता हूँ और उसे दिखाई देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, मैं पहले से एंड कर देता हूँ प्रोसेस को। कंट्रोल+C से तुम्हारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे सिंपल एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाया है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ एक ऐप इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे पोर्ट डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद ऐप.यूज express.json, जैसे कि मैं इसमें कहा, ये रहा, सॉरी फॉर्म डेटा, ये रहा तुम्हारा एक जेसन डेटा, एक की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में मैं डेटा भेज रहा हूँ, उसे मुझे एक्सेस करना है तो मुझे express.json का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे अगर जेसन डेटा से काम करना है तो express.json मिडलवेयर को यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरह अगर तुम्हें फॉर्म डेटा का यूज़ करना है, फॉर्म डेटा के साथ काम करना है तो express.url एनकोडेड यूज़ करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड ट्रू। उसके बाद ऐप.पोस्ट किया हुआ है /फॉर्म पे। रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स तुम्हारा 2 पैरामीटर है। उसके बाद कॉन्स्ट फॉर्म, सॉरी वेरिएबल में रिक्वेस्ट.बॉडी, बॉडीज जो डेटा भेज रहा हूँ वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ये तुम्हें समझ में बाद में आएगा थोड़ा सा जब मैं एप्लीकेशन पूरी बनाऊंगा। और नाउ मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो है response.json। यहाँ पे देखो जो डेटा आया फॉर्म डेटा, मैं उसे रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और वो इस मिडल वेयर का यूज़ करना पड़ रहा है मुझे। उसके बाद वही देखो कि फॉर्म डेटा यहाँ से आया रिक्वेस्ट.बॉडी से, उसे मैं जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसे मैं इस पोर्ट पे शो कर रहा हूँ। वैसे एक बार रन करता हूँ मैं, टर्मिनल में गया, नया टर्मिनल खोला, नोड index.js, देखो यहाँ पे मेरा पोर्ट रन कर रहा है। और अगर मैं इस पे जाऊं तो क्या आएगा मेरा, /form कैन नॉट गेट द डेटा, /form लिखता हूँ तो क्या आता है, कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई डेटा मैंने पास ही नहीं किया है। देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट.बॉडी से ले रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने कोई बॉडी में डेटा पास किया नहीं है, बट उस डेटा को मैं रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ तुम्हारा इससे भी आएगा। यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कोई डेटा पास नहीं किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग बॉडी से डेटा उठा रहे थे, रिस्पॉन्स जो भी क्लाइंट भेज रहा है। तो दिस इज ऑल फॉर नाउ पार्सिंग बॉडी, मतलब बॉडी को कैसे पार्स करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पासिंग हेडर, मतलब हेडर में अगर कोई डेटा पास हो रहा है और मुझे उसे एक्सेस करना है, जैसे कोई क्लाइंट है वो हेडर में डेटा भेज रहा है, उसे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा। इन द एक्सप्रेस एप्लीकेशन यू कैन एक्सेस द हेडर इन द गेट रिक्वेस्ट थ्रू द request.header object in the route handler. The request.header object contain all the headers sent with the request and you can extract and use the specific header as needed. मतलब देखो यार, request.header से मैं उसकी हेडर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ और जो स्पेसिफिकली मुझे हेडर में वैल्यू चाहिए, क्योंकि बहुत ढेर सारी हेडर में चीज़ें पास होती हैं, मुझे जो भी स्पेसिफिकली चाहिए मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं पहले ही बता रहा हूँ यार एट लास्ट में भी कि मैं लास्ट में एक एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें सब चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, जो कि तुम्हारा ये कई चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे पोस्टमैन हो गया उसका भी यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, तो उससे तुम्हारा होगा। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है, सिंपली सॉरी इंपोर्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पे ऐप इंस्टेंशिएट किया हुआ है एक्सप्रेस का, वो डिफाइन किया है। उसके बाद ये राउट है सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है। अब मैं हेडर से वैल्यू ले रहा हूँ request.header करके, यूज़र एजेंट उसमें कोई एक की वैल्यू पेयर टाइप होगा या वैल्यू होगी, मैं उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूज़र एजेंट में क्या आएगा, उसके बाद request.header में एक्सेप्ट लैंग्वेज भी होगा, मतलब कई चीज़ें पास कर सकता है वो, तो मैं ये दूसरी चीज़ निकाल रहा हूँ उसमें से एक्सेप्ट लैंग्वेज करके। उसके बाद इसको मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ जो भी मेरा डेटा है उसे रेस्पॉन्स में, response.json
यहाँ पे। अब ऐप डॉट लिसन पोर्ट नंबर, पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ और उसे यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये किस पोर्ट पे मेरा चल रहा है सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यार, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट हेडर से मुझे हेडर की वैल्यू मिली है जो भी मुझे हेडर एक्सेस करना है। सो दिस इज द पार्सिंग हेडर इन कोहोर्ट 2। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्सिंग क्वेरीज। लाइक देखो यार, डेटा पास करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि बॉडी हो गया, हेडर हो गया, क्वेरी पैरामीटर्स हो गया। तो ये क्वेरी पैरामीटर्स एक तरीके से। तो हाउ टू पार्स द क्वेरी पैरामीटर्स इन द एक्सप्रेस डॉट जेएस एप्लीकेशन। क्वेरी पैरामीटर कैन बी पार्स्ड फ्रॉम द यूआरएल यूजिंग द रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। मतलब मान लो कोई यहाँ पे डेटा अगर यहाँ से पास कर रहा है कि मतलब यूआरएल में पास किया हुआ है और मुझे उसे एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा? तो वो होता है तुम्हारा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के मेथड से। मान लो कि देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है। तो मतलब मान लो कि इतना यूआरएल है http://www.domain.com/page। अब यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेरी है ना, ये की1 तुम्हारा जो है वो क्वेरी है, फर्स्ट वेरिएबल, उसकी वैल्यू, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद जो भी चीज़ें शुरू होती हैं वो तुम्हारी क्वेरी पैरामीटर, एज ए क्वेरी पैरामीटर पास होती हैं। तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है तुम्हारा, की इक्वल टू वैल्यू 1, एंड जो है वो सेपरेट करता है किसी भी चीज़ को। उसके बाद की वैल्यू, की टू वैल्यू 2, ये दूसरा वेरिएबल है। अब ये देखो, फर्स्ट वेरिएबल नेम, सेकेंड इज द सेकेंड वेरिएबल नेम, एंड द क्वेरी स्ट्रिंग बिगिंस, मतलब यहाँ से क्वेरी स्ट्रिंग बिगिन हो रही है। उसके बाद इज इक्वल टू वैल्यू, मतलब उसको वैल्यू जो भी असाइन करना है, मुझे एक्सेस करना है अगर वैल्यू की तो मैं उसे कैसे एक्सेस करूँगा वो भी बताया गया है। एंड पैरामीटर आर सेपरेटर, मतलब यहाँ पे सेपरेट करने के लिए एंड पैरामीटर यूज किया हुआ है। अब देखो, मान लो कि मुझे ऐसे एक्सेस करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में की1 की जगह आईडी लिख दूँ और उसमें कोई वैल्यू डाल दूँ, ये जो यहाँ पे लिखा देखो, एक मैंने सिंपल एप्लीकेशन बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेस एप्लीकेशन स्लाइज किया हुआ है, ऐप इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, पोर्ट नंबर डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे एक राउट्स में एक एरो फंक्शन लिखा हुआ है, रेस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स यूजर आई डी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आई डी। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख दूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दूँ, सॉरी, यहाँ पे आईडी लिख दूँ और वैल्यू डाल दूँ, तो वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आई डी से। और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम से मान लो कि यहाँ पे दूसरे वेरिएबल में यहाँ पे नेम लिख दूँ और कोई वैल्यू डाल दूँ, तो उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम से। अब दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, उसे जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट, सिंपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ दोनों को, आईडी इक्वल टू यूजर आईडी एंड नेम इक्वल टू नेम। अब उसको यहाँ पे मैं जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और सिंपल यहाँ पे तो पोर्ट इनिशियलाइज किया हुआ है। सो दिस इज द सिंपल कोड ऑफ क्वेरी पैरामीटर्स, दैट हाउ वी आर पासिंग द क्वेरी पैरामीटर्स इन द यूआरएल एंड हाउ वी आर accessing that parameters. So our next topic is Postman. What is Postman? Like Postman is a popular API development and the testing tool that allow you to make the HTTP request to a server and view the responses. It is commonly used for the testing API. मान लो कि तुमने कोई बैकएंड या बैकएंड की API लिखी हुई है, तो उसे टेस्ट तुम कैसे करोगे? उसका इन जनरल हम लोग यूज करते हैं पोस्टमैन, एक टूल होता है API डेवलपमेंट के लिए। यहाँ से तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि बैकएंड अगर कॉल कर रहा हूँ तो मुझे मेरी फैसिलिटी रन कर रही है कि नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, मतलब फिर से उस एपीआई को मैं दोबारा लिख सकूँ। यहाँ तुम डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। लास्ट प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करूँगा, लास्ट एक प्रोजेक्ट में सब चीज़ों को कंबाइंडली मैं यूज़ करने वाला हूँ। नाउ वी आर ऑन द फिल्टर, मैप एंड एरो फंक्शन। ये तीनों एक बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लाइक होता क्या है, फिल्टर इज यूज टू बेसिकली द फिल्टर, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, यूज टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम द एरे और एनीथिंग, एंड मैप फ्रॉम ऑब्जेक्ट लाइक, एंड मैप इज यूज टू आइट्रेट। जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को मुझे आइट्रेट करना हो एरो को, तो मैं मैप का यूज़ कर सकता हूँ, जबकि मैं फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ। बट मैप में कुछ चीज़ होती है, जैसे कि यूनिकनेस प्रोवाइड करनी हो गई, तो वो मैं की, जैसे एक पैरामीटर होता है की मैप में, उसे मैं पास करता हूँ। और तीसरा हो गया एरो फंक्शन। बेसिकली एरो फंक्शन एक सिंपलेस्ट वे होता है कि इसको डिफाइन करने का। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल उसका। कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू एक एरे मैंने बनाया है। अब इस एरे को मुझे आइट्रेट करना है, तो मैं मैप का यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैथ्स, अब एक फंक्शन आई लिया है मैंने, यहाँ एक फंक्शन बना रहा हूँ एज आई एंड रिटर्न आई इंटू 2, उसे प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब एक दूसरा एरे मैंने बनाया यहाँ पे, और सेम एक मैंने फिल्टर लिखा है यहाँ पे मैंने मैप लिखा है, कैसे उसे आइट्रेट करते हैं मैप। जबकि यहाँ पे मैं की अभी लिख नहीं रहा हूँ, जबकि एक्चुअली ये चीज़ होता है ना कि मैप हम लोग जो की वैल्यू होती है
उसे वो यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है किसी को भी, ताकि हम लोग कोई वैल्यू एक्सेस करें बाद में तो यूनिक की उसे एक्सेस कर सकें, यूनिकली उसे एक्सेस कर सकें। दूसरा है कि फिल्टर, देखो यहाँ पे एरे डॉट फिल्टर फंक्शन एन मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि जो नंबर मॉड्यूलो 0 के इक्वल नहीं होंगे वो यहाँ पे एक्सेस होंगे। इफ नॉट रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे फिल्टर जो बेसिकली डेटा फिल्टर के लिए यूज हो रहा है, सिंपल। यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं लिखा है क्या, रुको एरो फंक्शन लिख देता हूँ मैं छोटा सा। So next is arrow function. The arrow function in JavaScript is a more concise way to write a function. It uses the arrow syntax and is particularly useful for writing function, short function. Here is the basic example. Like देखो यहाँ पे example लिखा हुआ है arrow function का, यहाँ पे एक simple function लिखा गया है without arrow function, और वही function यहाँ पे मैंने एक arrow function से लिखा है like const add is equal to a and b। a जो भी हैं वो पैरामीटर यूज करते हैं, और एक arrow function मतलब इज इक्वल टू जो है वो एरो इज इक्वल लिखा है, उसके बाद ए प्लस बी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स में मतलब कई तरीके से एरो फंक्शन लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कि सिंगल अगर पैरामीटर है, इफ द फंक्शन हैज ओनली द वन पैरामीटर यू कैन ओमिट द पैरेंथेसिस, लाइक पैरेंथेसिस हटा सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस यूज की हुई है, वो तुम हटा सकते हो। एक्स एरो एक्स इंटू एक्स, सिंपल। अगर तुम्हें नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर ही नहीं है सिंपली, यहाँ पे तुम्हें एम्प्टी एरे पास करना होगा। यहाँ पे देखो if no parameter, if the function has no parameter you must use the empty parenthesis। यहाँ पे empty parenthesis पास करोगे, एरो, उसका जो भी तुम्हें चाहिए वैल्यू लिख दो, आउटपुट। इन मल्टी लाइन बॉडी, मान लो कि तुम्हें यहाँ पे आउटपुट जो है वो मल्टी लाइन बॉडी है, उसके लिए तुम्हें पैरेंथेसिस फिर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। मल्टी लाइन, इफ द फंक्शन बॉडी कंटेन दी मोर देन वन स्टेटमेंट यू नीड टू यूज द कर्ली ब्रेसेस एंड एक्सप्लिसिटली रिटर्न ए वैल्यू। यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन। यहाँ पे ए एंड बी पैरामीटर पास किया हुआ है, एरो, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाया यहाँ पे, क्योंकि मल्टी लाइन यहाँ पे मुझे चाहिए आउटपुट। कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कंसोल लॉग सम रिटर्न सम, सिंपल। सो दिस इज द फिल्टर मैप एंड एरो। सो our next topic is bash and terminal commands. In bash we have to navigate to different folders. We have to navigate in different folders and create, delete and update the different files and folders. So we need a different types of command in that, and the most probably command that has been used during the code are these commands only. like देखो पहले pwd command used to know the current directory। अगर pwd लिखूंगा मैं कहीं भी, like देखो यार अच्छी दिखाता हूँ, cmd ओपन कर लेता हूँ, एक दो कमांड तो मैं लिख के दिखाता हूँ, बाकी तुम प्रैक्टिकल कर लेना। देखो साइड बाय साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे pwd लिखूंगा तो मुझे करंट डायरेक्टरी मिल जाएगी। देखो करंट डायरेक्टरी क्या है। उसके बाद cd लिखूंगा तो मैं cd से डायरेक्टरी चेंज कर सकता हूँ, cd डॉट डॉट लिख दूंगा तो पीछे चला जाऊंगा, और cd अब आगे वाले फोल्डर का मुझे नाम लिखना पड़ेगा, किस फोल्डर मुझे जाना है, तो मैं लिखूंगा RAK कुमार, तो ये चेंज हो जाएगा। बेसिकली ऐसे ही तुम्हें cmd में अगर नेविगेट करना है किसी भी चीज़ में फोल्डर्स में तो तुम cmd का यूज़ कर सकते हो, और ये तुम्हारी कमांड्स हैं। देखो यहाँ पे ls क्या होता है, लिस्टिंग ऑल द फाइल, जो उस डायरेक्टरी में या फोल्डर, डायरेक्टरी उसे कहते हैं, फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं एक तरीके से। ls इज लिस्टिंग ऑल द फाइल, जितने भी तुम्हारी फाइल होंगी वो लिस्ट कर देंगी। mkdir यूज टू मेक द फोल्डर, cat इज यूज टू सी द कॉन्टेंट ऑफ द फाइल। मान लो तुमने कोई फाइल बनाई, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, उसका तुम्हें कॉन्टेंट देखना है, अब तो कैसे दोगे, cat कमांड्स यूज करके देख सकते हो। vi is used to edit the file, touch command is used to create the empty file, and mv is used to move the folder from the one directory to another directory, and cp is basically used to copy the file from one directory to another directory। इसका मैं तुम्हें एक चीट शीट दे दूंगा लास्ट में, डिस्क्रिप्शन देख लेना। क्योंकि देखो बस mv जो है एक कमांड से एक ही चीज़ नहीं होती है, तुम कई चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि vi हो गया तो एडिट कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा cd हो गया, cd अगर मैं डॉट डॉट लिखता हूँ तो पीछे जाऊँगा, और cd के साथ कई और भी कमांड यूज, जैसे कि कंबाइंड कमांड यूज हम लोग कर सकते हैं, वो तुम्हें मैं प्रोवाइड कर दूँगा एक चीट शीट, तुम उसमें देख लेना एक बार। और नेक्स्ट टॉपिक इज गिट एंड गिटहब। तो व्हाट इज गिट? यूज फॉर द वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड लोकली ऑन द कंप्यूटर, ट्रैक द चेंजेस ऑफ द मेड टू द फाइल। लाइक गिट जो है वो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं,
और किसी भी चेंज को फाइल में चेंजेस अगर मुझे करने हैं तो मैं उससे थ्रू कर सकता हूँ। देखो ऑलरेडी मेरे में गिट इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, ये रहा गिट बैश, सॉरी गिट बैश इंस्टॉल है। गिटहब यूज फॉर द होस्टिंग गिट रिपोजिटरी क्लाउड बेस्ड प्रोवाइड द वेब इंटरफेस व्यू द फाइल चेंजेस। लाइक देखो यार, अब मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना कोई प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय करना है, दिखाना है किसी को, तो एक तरीके से गिटहब जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अपने कोड को मैं पुश करूँ यहाँ पे, वहाँ पे रखूँ एक तरीके से। ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एक तरीके से सकते हैं। द कमांड दैट हैज बीन कवर्ड इन द कोड 2v2 आर बेसिकली, देखो यार मैं इसकी अलग से स्पेशली वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है एक्चुअली, जो हो भी गई है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कमांड्स को कैसे यूज़ करना है, एक गिटहब के लिए और दूसरा टर्मिनल कमांड्स के लिए। सो फॉर नाउ व्हाट आर द कमांड दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस वीक आर git init, ls -la, git status, git add, git commit, git remote -v, git remote add origin, यहाँ पे URL लिंक होगा, फिर उसके बाद डॉट git push origin master origin where my current repo location। बेसिकली दिस मैंने ये चीज़ लिखा क्योंकि एक एरर आ रहा था भाई, जो मैं दिखाऊंगा तुम्हें वीडियो में कि कुछ चीज़ होती है जैसे कि मैं अगर पुश कर रहा हूँ किसी चीज़ में तो मुझे एरर मिलता है, उसके लिए मुझे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर तुम पहली बार गिटहब पे काम कर रहे हो तो तुम्हें अगर पुश कर रहे हो कोई चीज़ ऑनलाइन तो तुम्हें एरर आता है, वो बोलता है कि तुम्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है सॉल्यूशन क्रिएट अ टोकन फॉर द ऑथेंटिकेशन। उसके बाद तुम्हारा ये देखो URL है, तुम्हारा उसमें टोकन पास करना पड़ेगा तब तुम ऑथेंटिकेट हो गए। उसके बाद तुम अपना जो रिपोजिटरी उसे तुम पुश कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद गिट क्लोन URL बेसिकली यूज टू क्लोन द रिपोजिटरी ऑफ अदर्स, गिट ब्रांच -b और ब्रांच नेम। गिट चेकआउट मेन मतलब किसी अगर तुम्हें ब्रांच से चेकआउट करना है, दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना है तो गिट चेकआउट मेन का यूज़ कर सकते हो, सॉरी गिट चेकआउट यहाँ पे ब्रांच का नेम यूज़ कर सकते हो। तो इसका मैं डेडिकेटली एक वीडियो बना दूंगा लास्ट में, और टर्मिनल कमांड्स का भी। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट हैज बीन कवर्ड इन द वीक 2। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।